Good morning, students. Today we will discuss the second topic of your macroeconomic analysis, that is circular flow of income and product. आय तथा उत्पादन का चक्रीय प्रवाह. This concept and this topic includes two different kinds of flows, that are real flow and money flow. But before understanding these flows, we will understand the basic meaning and definition of circular flow of income. So, it means the flow of money income or the flow of goods and services across different sectors of the economy in a circular form. In other words, और अगर हम हिंदी में इसका मीनिंग समझें तो हम क्या कह सकते हैं, एक अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों के मध्य मुद्रा तथा वस्तुओं और सेवाओं का आपस में आदान प्रदान आय का चक्रीय प्रवाह कहलाता है. अर्थात अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों में मौद्रिक आय के प्रवाह और वस्तुओं व सेवाओं के चक्रीय प्रवाह को आय का वर्तुल प्रवाह या आय का चक्रीय प्रवाह कहा जाता है. In this topic, the very important thing is the inclusion of two flows, that are real flow and money flow. अब हम इन दो प्रकार के फ्लोज़ को समझेंगे कि रियल फ्लो क्या है. रियल फ्लो को अगर हम हिंदी भाषा में बोलें तो हम कहेंगे वास्तविक प्रवाह. घरेलू क्षेत्र से उत्पादक फर्म को साधन सेवाओं तथा उत्पादक फर्म से घरेलू क्षेत्र की ओर वस्तुओं व सेवाओं का प्रवाह वास्तविक प्रवाह कहलाता है. Real flow of income implies the flow of factor services from the household sector to the producing sector and the corresponding flow of goods and services from the producing sector to the household sector. इसको अगर हम एक डायग्रामेटिक फॉर्म में देखें तो हम देखेंगे there will be two sectors. Number one is household sector and number two is producing sector. Here, as I have explained you in the definition, from one sector goods and services are being flowed. एक क्षेत्र से वस्तु और सेवाओं का प्रवाह हो रहा है और वो कहाँ से हो रहा है, घरेलू क्षेत्र वस्तुओं और घरेलू क्षेत्र उत्पादन के साधन प्रदान करते हैं उत्पादक क्षेत्र को और उसके बदले में उत्पादक क्षेत्र घरेलू क्षेत्रों को वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह करते हैं. तो इसे हम कहते हैं आय और उत्पादन का वास्तविक प्रवाह. Now comes the money flow. What does it mean? Basically, money flow refers to the flow of factor income from the producing sector to the household sector as monetary rewards for their factor services. Correspondingly, the households spend their incomes on the goods and services produced by the producing sector. अर्थात उत्पादक फर्मों से घरेलू क्षेत्र को साधन सेवाओं के बदले साधन भुगतान देना और घरेलू क्षेत्र से उत्पादन क्षेत्र को वस्तुओं व सेवाओं के बदले मौद्रिक भुगतान देना, इसे हम आय का मौद्रिक प्रवाह कहते हैं. Here it is a diagram of this money flow. Here also there are two sectors. Number one is household sector and the number two is the producing sector. Household sectors are paying for their consumption of goods and services and producing sectors are paying the household sector for the utilization of their factor services in the terms of factor payments. उत्पादन के साधनों के प्रतिफलों या उनके भुगतान के रूप में. तो यहाँ पर भी आपको एक सर्कुलर फ्लो का डायग्राम दिखेगा विच इज़
including the money flow. But when we talk about the circular flow of income, we include both these flows, right? Money flow from one side and the real flow from the another side. जब हम आय के चक्रीय प्रवाह की बात करते हैं तो हम वास्तविक प्रवाह एवं मौद्रिक प्रवाह दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। अब प्रश्न उठता है, why the flow of income and product is called the circular flow? इस प्रवाह को हम चक्रीय प्रवाह के नाम से क्यों जानते हैं? Why it is being called as the flow of income and product in a circular manner? So there are a few points which explains this. Number one, corresponding to each real flow to one direction, there is a money or income flow from the opposite direction. Example, corresponding to the flow of factor services, which is a real flow from household to the producer sector, there is a flow of factor payments, which is what? Which is a money flow from producer to the household sector. अर्थात प्रत्येक वास्तविक प्रवाह के लिए एक मौद्रिक प्रवाह होता है। उदाहरण स्वरूप, जब घरेलू क्षेत्र उत्पादन के साधनों की पूर्ति करता है तो उसके बदले उत्पादक क्षेत्र घरेलू क्षेत्र को उत्पादन के साधनों का भुगतान करते हैं। तो आपने देखा, एक रियल फ्लो कॉरस्पॉन्ड कर रहा है एक मनी फ्लो से। नंबर टू, वी कैन से receipts of one sector from another sector another sectors are equal to the payments to another sectors. In case receipts are less than the payments, circularity is bound to stop at one point or the other. Now comes the point, why does the circular flow model show? What does it show? The circular flow model shows value of goods and services produced in the economy during a given period. This is national product. अब हम कह सकते हैं कि आय का चक्रीय प्रवाह आखिर दर्शाता क्या है? आय का चक्रीय प्रवाह हमें एक देश में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादन की गई वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य दर्शाता है, जिसे हम राष्ट्रीय उत्पाद भी कहते हैं। Income generated in the economy in the forms of rent, interest, profit and wages during the period of 1 year, this is national income. और we can say, और हम क्या कह सकते हैं, ये हमें एक देश में एक वित्तीय वर्ष में उत्पन्न होने वाली साधन आय को दर्शाता है। साधन आय में हम शामिल करेंगे लगान, ब्याज की दर, लाभ, मजदूरी। फिर हम कह सकते हैं ये क्या दर्शाता है? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज एग्जैक्टली इक्वल टू इनकम जनरेटेड। दिस पॉइंट्स टू एन ऑब्वियस आइडेंटिटी बिटवीन नेशनल प्रोडक्ट एंड नेशनल इनकम। हम कह सकते हैं वट एवर गुड एंड सर्विसेज इज बीन प्रोड्यूस्ड is equal to the income generated in the economy in that particular financial year. So there comes a point of equality between national product and national income. That is why we say that these three concepts, national product, national income and third is national expenditure, are just like the same thing. We have a unity or equality between these things. Then comes the point, all goods and services produced in the economy are ultimately purchased. जो अभी मैंने आपको बताया, राष्ट्रीय उत्पाद ही उत्पन्न करता है राष्ट्रीय आय और वही राष्ट्रीय आय फिर व्यय की जाती है या हम कह सकते हैं खर्च की जाती है। तो इससे क्या समझ आता है हमें? इससे हमें यह पता चलता है कि ये तीनों समष्टि अर्थशास्त्रीय चर समान हैं। कौन कौन से? राष्ट्रीय उत्पादन, राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय व्यय। इसी को एक्सप्लेन करते हुए हमने एक इक्वालिटी का इक्वेशन देखेंगे।
Production is equals to generation of income is equals to expenditure on goods and services. फिर हम बात करते हैं द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी, जो हमने अभी ही अध्ययन किया था कि देयर आर ओनली टू सेक्टर्स. वी आर अज्यूमिंग दैट initially we are assuming that there are only two sectors in the economy. Number one is household sector and the second one is the producing sector. इसकी कुछ मान्यताएं हैं, जैसे there are only two sectors. Number two, household supply factor services. Number three, households spend their income on consumption. Firms sell all that is produced to the households. There is no government or foreign trade. हमने जो मान्यता मानी है उसके अकॉर्डिंग सरकारी हस्तक्षेप नहीं है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है. So this diagram is explaining the two sector circular flow model. Okay. There comes also a point when we include the savings and financial system also in the two sector circular flow model. इसका डायग्राम आपको यहाँ मिलेगा. इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा कि we will get the financial system also, and we can use that money market or any kind of financial institution. Here also production will be equal to income generated and that will ultimately be equal to the expenditure. अब हम इसी आय के चक्रीय प्रवाह को सरकारी क्षेत्र के साथ पढ़ेंगे. इसमें आपको ओनली 2 और 3 पॉइंट्स अलग दिखेंगे, जो कि होंगे नंबर 1. जैसे हम देखें इसमें क्या मानेंगे हम, द गवर्नमेंट लेवीज टैक्सेस ऑन द हाउस होल्ड्स, अकॉर्डिंगली मनी फ्लोज फ्रॉम द हाउस होल्ड्स टू द गवर्नमेंट. सरकार जब घरेलू क्षेत्र पर कर आरोपित करती है तो आय का प्रवाह घरेलू क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र की तरफ जाता है. नंबर 2, द गवर्नमेंट लेवीज टैक्सेस ऑन द प्रोड्यूसर्स, अकॉर्डिंगली मनी फ्लोज फ्रॉम द फर्म्स टू द गवर्नमेंट. जब सरकारी क्षेत्र कर आरोपित करता है उत्पादक क्षेत्र पर, तब आय का प्रवाह होता है उत्पादक क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र की तरफ. द गवर्नमेंट ऑफर्स सब्सिडीज टू द प्रोड्यूसर्स, अकॉर्डिंगली मनी फ्लोज फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द प्रोड्यूसर्स. जब सरकार उत्पादक क्षेत्र को अनुदान देती है तब आय का प्रवाह सरकारी क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की ओर जाता है. The government offers financial help to the households in the form of old age pension to the senior citizens. Accordingly, money flows from government to the households. These are called as transfer payments. जब सरकार घरेलू क्षेत्र को वित्तीय सहायता देती है, किस रूप में, वृद्ध पेंशन और छात्रवृत्तियों के रूप में, तब आय का प्रवाह सरकारी क्षेत्र से घरेलू क्षेत्र की ओर होता है. The government saves, causing flow of money from government to the money market. जब सरकार बचत करती है तो आय का प्रवाह सरकारी क्षेत्र से मुद्रा बाजार की ओर होता है. The government borrows money, causing flow of money from money market to the government. जब सरकार उधार लेती है तब आय का प्रवाह सरकारी क्षेत्र से, तब आय का प्रवाह मुद्रा बाजार से सरकारी क्षेत्र की ओर होता है. द गवर्नमेंट बाइज गुड्स एंड सर्विसेज, अकॉर्डिंगली मनी फ्लोज फ्रॉम द गवर्नमेंट टू प्रोड्यूसर्स. जब सरकार वस्तु और सेवाओं की खरीद करती है तो आय का प्रवाह सरकारी क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की ओर जाता है. नाउ विल डिस्कस द एक्टिविटीज ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द सर्कुलर फ्लो मॉडल. अब जब हम बात करते हैं सर्कुलर फ्लो मॉडल की, तब हम 4th सेक्टर को भी इसमें इंक्लूड करते हैं, वो है द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. इसमें आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखनी है, निर्यात रसीद और आयात निर्यात रसीद और आयात का भुगतान, एक्सपोर्ट रिसीट्स. Whatever the government and the economy is getting from its exports and whatever the government and the economy is paying for its imports. आयात और निर्यातों का
भुगतान या उनसे प्राप्तियों को भी हम इसमें अध्ययन करते हैं। सीधी सी बात है, जब हम निर्यात करते हैं वस्तु और सेवा तो हमारे देश से विश्व की ओर जाती हैं और विश्व से हमें उनके बदले निर्यात प्राप्तियां प्राप्त होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आय का प्रवाह विश्व से हमारे देश की ओर होना। जब हम आयात करते हैं तो आयात के लिए हमें भुगतान करना पड़ता है। इसमें हमारे देश से आय का प्रवाह विश्व की ओर जाता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। वी हैव इंक्लूडेड 2 sector model, 3 sector model and the 4 sector model. Tomorrow we will discuss the 3 phases of circular flow. Okay? I hope you guys have understood the basic concepts of circular flow of income.